Well, my dear aspirants for the post of the lecturer 10+2, particularly in economics, I promised you 2-3 days back that I'll be giving you some demo classes. They can be based on the concept, some definitions, concepts, basic knowledge and some MCQs. जैसा कल मैंने आपको कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स के MCQs 10-12 MCQs आपसे डिस्कस किए। मेरा मकसद आपको ये सब देने का है कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी है, क्योंकि आज भी सुबह से बच्चों की कॉल्स आ रही हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी, कौन सी किताबें पढ़नी। आई सेड कोई एक किताब तो है नहीं, देयर इज नो वन बुक विच विल हेल्प यू। अब हम जैसे लोग हैं जो रिटायर्ड लोग हैं, जिन्होंने सारी उम्र इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, हमारे पास तो एक, मुझे लगता है मेरे पास कम से कम इकोनॉमिक्स की 2-3 हज़ार किताब पढ़ी होगी। वैरायटी ऑफ बुक्स राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरे पास, और मुझे मालूम है कौन सा चैप्टर कहाँ से उठाना और कैसे तैयारी करनी है। तो कल मैंने MCQs किए, आज मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज मैं कॉन्सेप्ट करूँगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और कल मैं इसके कुछ 10 के करीब MCQs, 10-12 के करीब MCQs डिस्कस करूँगा। परसों मैं लाऊँगा आपके लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके बाद उसके MCQs होते हैं। ये थोड़ा एक शॉर्ट ड्यूरेशन के छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बता रहे हैं जी हमने 2012 में पास किया था, 2013 में पास किया था। तो उन लोगों के लिए खासकर ये बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे भूल चुके हैं, जो आउट ऑफ टच हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आज डिस्कस करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली concept of price elasticity of demand is an extension of the law of demand. Law of demand जो आपने बड़ी बेसिक कहीं 11th-12th में पढ़ा होगा, the law of demand explains that other things remaining same, with a fall in the price, more of the commodity will be demanded and vice versa. Less of it will be demanded with a rise in price. This is the law of demand. Law of demand tells us only a negative relation between the price and the quantity demanded. Okay? Law of demand tells us about a negative relation between the price and the quantity demanded, other things remaining same. So, but it only tells us about the direction of change. कि किस डायरेक्शन में प्राइस जाएगी, किस डायरेक्शन में क्वांटिटी डिमांडेड बिहेव करेगी। If the price falls, quantity demanded will rise, increase. If the price rises, the quantity demanded will fall. अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड आपस में रिलेटेड रहेंगे। अब लॉ ऑफ डिमांड ओनली टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि किस डायरेक्शन में प्राइस जाएगी, किस डायरेक्शन में क्वांटिटी डिमांडेड होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और है। आफ्टर स्टडिंग लॉ ऑफ डिमांड वी वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन, दैट हाउ मच चेंज इन प्राइस। अब इसमें क्या करेंगे आप, how much change in price will lead to how much change in the quantity demanded. How much? Now the question is how much change in the price will lead to how much. When you ask about the amount of change in the price and it affects on the amount of change in the quantity demanded, it refers to the price elasticity of demand. The effect of change in price over the amount demanded of the commodity. The extent of, हम इसको ऐसा भी लिखेंगे, extent of change in quantity demanded
as a result of change in its price. Other things remaining same. Other factors will not change, will remain unchanged. What are these other things? What are these other things? For example, income of the consumer will remain same, his taste will remain same, his habits will remain same, his fashion will remain same, weather conditions will remain same. So other things remaining same, we study only the impact of change. To what extent? Suppose, for example, if price changes by 5% and quantity demand also changes by 5%, what will be the elasticity of demand? If price changes by 5% and the quantity demand changes by 10%, what will be the elasticity of demand? ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं एक और इसका तरीका बताने का, प्राइस elasticity of demand refers to the percentage or proportionate change in price in quantity demanded as a result to quantity demanded as a result to percentage or proportionate change in price. This is one more way of defining the price elasticity of demand. Okay, how much is the percentage change in quantity demanded as a result of the percentage change in the price of the commodity, other things remaining same, is what refers to the elasticity of demand. किस हद तक डिमांड चेंज होगा, किस हद तक प्राइस की वजह से, जब इस चीज को स्टडी करेंगे दैट विल बिकम प्राइस लॉ. चलिए आगे चलते हैं, हम इसको थोड़ा विल पुट इट लाइक दिस. elasticity of demand, we put it ED is equal to proportionate change in quantity demanded over proportionate or percentage change in price. Alternately हम इसको लिखेंगे proportionate change. It will be change in quantity demanded over original quantity demanded overall change in price over original price. अब इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे हम लोग. सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. दिस डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज upon original quantity demanded oblique change in price upon original price is equal to चेंज को एक तरफ ले आइए, अपॉन चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू.
This is the ultimate formula which you will arrive at in order to calculate the price elasticity of demand. इसी फार्मूले को यूज करके हम ये निकाल सकते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि कितना चेंज इन प्राइस, कितना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को लाएगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इट हैज सर्टेन टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स of price elasticity of demand. There are 5 types of the elasticity of demand. Number 1, perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand और zero elastic demand, और इसको zero elastic demand भी बोलते हैं। डिमांड ये क्या है? It is a case. Perfectly inelastic demand is a case in which whatever may be the fall in price or rise in the price, ये पहले ही मैं लिख दूं, it is an imaginary case. इसमें है क्या? Perfectly inelastic demand is a case in which whatever may be the change in price, it represents a case in which there is no change, zero change in the quantity demanded. There is no change. The demand remains inelastic. This is how it will represent. This is price. This is quantity demanded. It's a perfectly inelastic demand case. You get where the elasticity of demand is equal to 0, no change. The demand will become sticky, no change. This is the demand curve. No change, it will be 0. There will be no change. It's an imaginary case. ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी कीमत कम हो या ज़्यादा हो और डिमांड पे कोई असर ना हो। Perfectly inelastic demand is an imaginary case. There is one more imaginary case. ये तो एक केस हो गया. There is one more imaginary case. ये तो हो गया perfectly inelastic. ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी चीज़ की कीमत कम हो जाए या चीज़ की कीमत बढ़ जाए और डिमांड पे कोई असर ना हो. ये imaginary case है. There is one more case, and this kind of vertical straight line parallel to y-axis becomes the shape of the demand curve. Number 2, perfectly elastic demand, where perfectly elastic demand, or it's a case also referred to as infinite elastic demand or infinite elastic demand, where a very small change, ये कैसे दिखाई देता है? Elasticity demand is equal to infinity. Infinity. This is the shape of the demand curve. ऐसा होता नहीं है. This is the case of demand curve. Quantity demanded, price, elasticity demand is equal to infinity. That shows that there is a small change, infinitesimal change in price leading to an infinite change in the amount demanded of a commodity. ऐसा भी कोई केस नहीं है कि जहाँ जो प्राइस है वो किसी हद तक चेंज हो जाती है कि जो आप मेजर भी नहीं कर सकते. Immeasurable change in price leading to immeasurable change in the amount demanded of a commodity.
ये दोनों केसेस इमेजिनरी हैं. इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी केस. इट्स ऑल्सो एन इमेजिनरी केस बिकॉज ये भी ऐसा नहीं होता. इस केस में है कि कीमत कम हो जाए, बढ़ जाए, डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है. और इस केस में कीमत ज़रा भी कम हो जाए तो डिमांड आसमान को छू ले या ज़मीन के नीचे चले जाए, ऐसा भी नहीं होता है. अब व्हाट इज द एक्चुअल केस? थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वेयर इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1. ये भी कोई रियल केस नहीं है, बट स्टिल you can find somewhere this kind of the thing where there is a unitary elastic demand where elastic demand is equal to 1. This is the shape of the demand. You know, वहाँ क्या है? This ये कौन सा केस है? Where change in price is equal to change in quantity demanded. याद रखना, unitary elastic demand is a case where change in price is equal to change in quantity. For example, 5% change in price leading to 5% change in 5% change in price leading to 5% change in quantity demanded. I'm sorry, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा. Where change in price is equal to change in quantity demanded. 5% change in price leading to 5% change in quantity demanded, and the demand curve is a rectangular hyperbola. This is called rectangular hyperbola. Quantity demanded, price. This is the shape of the demand curve. This is the basic demand curve. What is the shape of the demand curve? आपको डिमांड एनालिसिस जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व. इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज नेगेटिव रिलेशन होता है. अब देखें यहाँ क्या है, इक्वल चेंज. ये देखिए आप, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. दिस बिकम्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये आपको डिमांड एनालिसिस में आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मल शेप ऑफ ए डिमांड कर्व. द नॉर्मल शेप ऑफ ए डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हालांकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है बड़ा रेयर केस होता है, लेकिन फिर भी कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है दिस कैन हैपन इन द केस ऑफ कंफर्ट्स, नॉट लग्जरीज. दिस कैन हैपन इन द केस ऑफ कंफर्ट्स. फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ मिल्क, in the case of milk, if there is a rise in the price by 10%, the demand may fall by 10%. तो बेसिकली ये दोनों तो रेयर केसेस हैं, ये कहीं रेयर पॉसिबिलिटी हो सकती है. लेकिन इसके अलावा दो केसेस जो हैं विच आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रेलेवेंट प्रैक्टिकल. वन इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड, और हम इसको बोलते हैं हायर मोर देन यूनिटी इलास्टिक डिमांड. मोर देन यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस. याद रखना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, change in quantity demanded is greater than change in price. Suppose change in price, suppose change in price is 20% and change in quantity demanded is 30%. जब प्राइस 20% चेंज होता है, जब प्राइस 20% चेंज होता है और क्वांटिटी डिमांड 30% चेंज होता है, in this case the elasticity of demand is greater than 1. आप देखेंगे डायग्रामेटिकली भी quantity demanded price.
ये देखें, प्राइस थी ओपी, क्वांटिटी डिमांड था ओक्यू, प्राइस फॉल हुई है ओपी से ओपी 1, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा है ओक्यू से ओक्यू 1. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस. क्या गया डिमांड का. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस. ये देखें आप, दिस एरिया शोज a greater change from Q to Q1, price has fallen from P to P1. अगर आप इसको उल्टा पढ़ेंगे, price rises by this much and demand falls by this much. So when the change in quantity demand is greater than the change in price, this is the shape of the demand curve, which is relatively more elastic demand. ये किस चीज़ में होती है? लग्जरीज में. लग्जरीज में एसीज हो गए, कार्स हो गए, इन केसेस में लास्ट ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. ज़रा भी कीमत कम होती है तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदते हैं, कारें खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं और कई कंफर्ट चीज़ें जो लग्जरीज हैं उनको खरीदते हैं. नाउ कम्स टू वन मोर रियलिस्टिक केस, दैट इज इनइलास्टिक डिमांड. इनइलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड or less elastic demand. Very real case. This happens in the case of necessities. Please note करें, this happens in the case of necessities. आटा, चावल, दालें, नमक, इन केसेस में ऐसा होता है. लेस इलास्टिक का मतलब है कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड कम बढ़ती है. जैसे आटा, चावल, दालें हैं, कीमत अगर बढ़ भी गई तो हम कोई खाना नहीं छोड़ देते हैं उनको. दिस इज हाउ विल बी द डिमांड कर्व. क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस. प्राइस ज़्यादा फॉल हुई है, डिमांड कम बढ़ी है. ये दिस द डिमांड कर्व. चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन चेंज इन प्राइस, और change in price is greater than change in quantity demand. This happens in the case of necessities. The elasticity of demand is less than 1. Here, elasticity of demand is greater than 1. ये आपको आम क्वेश्चन आप पिछले सालों के पेपर में देखोगे, ऐसे क्वेश्चन आम होते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1. मोर इलास्टिक डिमांड है. कौन सी वो चीज़ें, क्योंकि जितनी आपकी नेसेसिटीज़ हैं, आटा, चावल, दालें हैं, नमक है, इनमें कीमत बढ़ जाए तो हम खाना नहीं छोड़ते और कीमत कम हो जाए तो हम ज़्यादा नहीं खाते, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, मतलब थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा नहीं बिल्कुल खाते. लेकिन लग्जरीज में ज़रा भी कीमतें कम होती है, हमारी डिमांड बढ़ जाती है. और दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड. इट्स 5 टाइप्स. इसी तरीके से मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स कल लूँगा. हो सकता है मैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्लास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कल करूंगा. उसके बाद मैं आपको इसके जो MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मेरा मकसद आपको ये सब करने का क्या है, क्योंकि क्लास तो आपकी 9 जनवरी को स्टार्ट होनी है. और आज सुबह सुबह कुछ बच्चों का कॉल आया कि वो 3 बजे नहीं आ सकते. आई सेड नो प्रॉब्लम, मैं कुछ बच्चों के लिए क्लास 11 बजे भी स्टार्ट कर सकता हूँ. 11-12 बजे के बीच स्टार्ट करता हूँ. जो कुछ बच्चे हैं जो कहीं बिज़ी हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं 3 बजे करूँगा, क्योंकि 2 किस्म के बच्चे हैं जो ज्वाइन करेंगे मेरी क्लासेस. अभी तक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई है. एक वो जो वर्किंग है और वो 3 बजे के बाद फ्री होंगे, उनको 3 बजे के बाद क्लास देंगे. और 3:15 भी हो सकती है, 3:30 भी हो सकती है. एक वो बच्चे जो अवेलेबल हैं, फ्री हैं, फ्रेश हैं, जिनका कोई काम नहीं है, एंड दे वांट कि आप 11-11:30 बजे क्लास स्टार्ट करें, उनके लिए 11-11:30. तो 2 बैचेज में मुझे लग रहा है कि हमारा काम शुरू हो जाएगा. और जो बच्चे मेरा वीडियो सुन रहे हैं, ये आप हमारे पास आएँ, हमें कांटेक्ट करें. देखिए ये नंबर मैंने कल भी लिखे थे, ये इस नंबरों पर कॉल करें. 9622961717, 9596884446.
उसके बाद 9419196517। ये कॉलिंग भी इन पे होती है, व्हाट्सएप भी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाएं, फ़ोन करके भी करवाएं, लिस्ट बन रही है। बिकॉज हमारे पास जो बेसिकली कोई जो पढ़ाने वाले हमारे जो यही स्टूडियो में जहाँ से इस बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा मैं इंटरैक्टिव बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा, और यही क्लास जो है इसको कन्वर्ट करके ऑनलाइन भी मिलेगी बच्चों को, क्योंकि कश्मीर से बहुत सारा बच्चा जो ऑनलाइन लेना चाहता है, तो उन लोगों को ये ऑनलाइन यही क्लास जो ऑफलाइन हो रही है यही इमीडिएटली हमारा सिस्टम लगा है, और हम इसको कन्वर्ट करके उन तक पहुँचाएँगे। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड ये क्लास वहाँ पहुँचेगी। साइमल्टेनियसली ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस होंगी। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो लिखवाएं हमको, अपना टाइम भी लिखवा दें, ताकि अकॉर्डिंगली हम अपनी क्लासेस को फिक्स करें। और ऐसे तरीके के छोटे छोटे वीडियो मैं आपको बना के देता रहूँगा। कभी कोई MCQs आएगा, अभी मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात भी करूँगा एक रोज़, मनी बैंकिंग की बात भी करूँगा एक रोज़, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी है, इंडस्ट्रियल। मैं पिछले साल के सिलेबस देख रहा था जो पहले एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें तो वो सब कुछ है। उसमें मनी बैंकिंग भी है, इंटरनेशनल ट्रेड भी है, उसमें मैक्रो भी है, माइक्रो भी है, उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स भी है, उसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी है। तो ये सारा आपको ये करवाऊंगा मैं। MCQs भी करवाएंगे और कॉन्सेप्ट देंगे। देखिए मेरी एक बात याद रखें, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको MCQs को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको कल भी वार्न किया था, MCQs में तुक्का मत लगाएं। इसको कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखें आपको इमीडिएटली MCQs आता है, बट विल बी द डिग्री ऑफ इलास्टिक, सपोज ये क्वेश्चन आता है, बट विल बी द डिग्री ऑफ इलास्टिक डिमांड इन द केस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इमीडिएटली आप बोलेंगे इट्स इनइलास्टिक, लेस देन इलास्टिक। What is the degree of elastic demand in the case of luxuries? आप immediately बोलेंगे it's greater than one, because the change in quantity demanded will be greater than change in price. इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और ये लगातार प्रोसेस 10-15 मिनट का हर दिन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।